Today we will discuss about the flagella. See, flagella is the locomotive organ which is present in the prokaryotic organism as well as eukaryotic organism. What does locomotive organ means? The organ which helps in locomotion, means flagella is the locomotive organ which helps in locomotion in the prokaryotic organism as well as eukaryotic organism. But there are many differences between the prokaryotic flagella as well as the eukaryotic flagella. So it is very important to study separately the prokaryotic flagella as well as eukaryotic flagella. So our topic is prokaryotic flagella. Means we will study about the flagella which is present in the prokaryotic organism. Especially we are going to study about the bacterial flagella, that is the flagella which is present in the bacteria. Bacteria on the basis of flagella are divided into two types. First is motile and the second is non-motile. Non-motile. It means flagella is the deciding factor which will decide whether the bacteria will be motile or it will be non-motile. It is the main deciding organ which will decide whether the organism are going to locomote or whether it is going to die, है ना? Flagella is the thin filamentous extension. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि फ्लैजिला क्या है, थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन है. क्वेश्चन में कम कि इट इज द थिक फिलामेंटस एक्सटेंशंस और थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन. देयर आर मेनी डिफरेंसेस बिटवीन द प्रोकैरियोट्स एज वेल एज यूकैरियोट फ्लैजिला. द डिफरेंसेस लाइज इन मेनी रेस्पेक्ट. इन केस ऑफ origin, the prokaryotic flagella is different from the eukaryotic flagella. Prokaryotic flagella originates from cell wall, whereas eukaryote flagella centriole. In case of eukaryotic organism, you will observe that the eukaryotic flagella are structurally different from the prokaryotic flagella. So the origin of the prokaryotic flagella, it arises from the cell wall, whereas in case of eukaryotic organism it arises from centriole. So बेसिक जो वर्ड है जो आपको याद रखना है कि प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला सेल वॉल से राइज होता है एंड यूकैरियोटिक फ्लैजिला सेंट्रियोल से राइज होता है. द थर्ड पॉइंट, व्हेन यू विल ऑब्जर्व द यूकैरियोटिक फ्लैजिला, व्हेन यू विल कट द क्रॉस सेक्शन ऑफ द फ्लैजिला, you will observe certain doublets of microtubules which are arranged peripherally, है ना. So total 9 microtubules arranged होते हैं. So there are 9 microtubules which are arranged peripherally in case of eukaryotic organism and 2 microtubules are arranged centrally. So this arrangement which is present in the eukaryotic flagella are absent in the prokaryotic flagella. So ये भी बहुत important point है कि 9+2 arrangement of microtubules prokaryotic flagella में absent होते हैं. Flagella are composed of flagellin protein which is helically arranged. तो ये जो फ्लैजिलिन प्रोटीन से बना होता है फ्लैजिला, वो कैसे फ्लैजिलिन प्रोटीन कैसे अरेंज होते हैं, दैट इज हेलिकली अरेंज्ड एंड आर प्रेजेंट इन लॉन्गिट्यूडिनल मैनर. ठीक है. व्हेन यू विल सी द बॉडी ऑफ फ्लैजिला, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. फर्स्ट इज द फिलामेंट, सेकेंड इज द हुक एंड थर्ड वन इज द बेसल बॉडी. सी, जब आप फ्लैजिला के एंटायर बॉडी को देखते हैं, यू विल ऑब्जर्व द बेसल बॉडी, इट इज अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर विच कंसिस्ट ऑफ रिंग्स. तो बेसल बॉडी में आपको रिंग्स दिखाई देते हैं. ये है आपका बेसल बॉडी. बेसल बॉडी में 2 सेट्स ऑफ रिंग प्रेजेंट है. पहले सेट्स को डिस्टल रिंग बोल रहे हैं एंड दूसरे सेट्स को प्रॉक्सिमल रिंग बोल रहे हैं. जो डिस्टल रिंग है उसमें वो प्रेजेंट होती है ग्लाइकोकैलिक्स एंड सेल वॉल में, एंड जो प्रॉक्सिमल रिंग है वो प्रेजेंट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में. क्लियर. सी, जब आप कोई भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को देखते हो, वो उनकी जो सेल इन्वेलप होती है वो 3 लेयर्ड की होती है. जो आउटर मोस्ट लेयर है वो ग्लाइकोकैलिक्स है एंड द मिडिल लेयर दैट इज द सेल वॉल एंड द इनर मोस्ट लेयर इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो ये जो रिंग अरेंज्ड होती है ये पूरे सेल इन्वेलप में अरेंज्ड होता है. जो डिस्टल रिंग है दैट इज द विच कंप्राइज ऑफ द एल एंड पी रिंग. एल रिंग ग्लाइकोकैलिक्स में प्रेजेंट होती है, पी रिंग सेल वॉल में अरेंज्ड होती है, एंड जो प्रॉक्सिमल रिंग है जिसके अंदर एस एंड एम रिंग आ रहे हैं,
ये एस रिंग जो होती है दैट इज द सुप्रा मेम्ब्रेनस रिंग, ठीक है। और ये कहां पे प्रेजेंट होता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। तो देयर आर फोर रिंग्स एल, पी, एस एंड एम, क्लियर। उसके बाद जो सेकेंड पार्ट है दैट इज द हुक। देखो फिलामेंट, फ्लैजिला की जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज द फिलामेंट, ये हुक भी फिलामेंट ही होता है, बट फिलामेंट का जो कर्व्ड पोर्शन होता है जिससे फिलामेंट अटैच होती है इससे बेसल बॉडी से, दैट इज हुक। तो हुक क्या है, हुक एक पार्ट है किसका, फिलामेंट का, जिससे कि फिलामेंट अटैच हो रहा है किससे, दैट इज द बेसल बॉडी। When you will observe the entire body of flagella, you will see that filament is the longest portion. तो filament क्या है, it is the longest portion of the flagella. इसके 3 parts हैं, that is the filament, hook and ये वाला ये है बेसल बॉडी। क्लियर। तो ये बेसल बॉडी। अब देखो फिलामेंट एक्सटेंड्स फ्रॉम द सेल वॉल सरफेस टू द आउटसाइड। तो व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग हियर कि फिलामेंट जो है ये सेल के सरफेस से राइज होता है एंड राइज, और ये आउटसाइड में हैंग होता रहता है ना। movement of flagella, when you are seeing the flagella is doing his movement, it is due to the active proton pump. तो ये किसके थ्रू होता है, एक्टिव प्रोटॉन पंप। तो मूवमेंट ऑफ फ्लैजिला इज ड्यू टू एक्टिव प्रोटॉन पंप। देखो when you will see the prokaryotic flagella and eukaryotic flagella separately, so there are many differences I have said you earlier. So first difference in case of origin, जब आप उसकी ओरिजिन देखते हो तो ओरिजिन जो प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला की है वो सेल वॉल से होती है एंड यूकैरियोटिक में सेंट्रियोल से होती है। इसका मतलब क्या है, ओरिजिन डिफरेंट है, लेकिन दोनों फ्लैजिला की जो फंक्शन है दोनों लोकोमोशन को ही परफॉर्म करता है। तो ओरिजिन क्या हुआ, डिफरेंट हुआ ना। तो ओरिजिन इज डिफरेंट बट फंक्शन इज सेम। तो ओरिजिन डिफरेंट है बट फंक्शन सेम है। डिस्पाइट हैविंग द सेम फंक्शन दैट इज द लोकोमोशन, दोनों फ्लैजिला प्रोकैरियोटिक में भी एंड यूकैरियोटिक में भी दोनों फ्लैजिला लोकोमोशन को ही परफॉर्म करते हैं, बट डिफरेंस क्या होता है, काइंड ऑफ लोकोमोशन में। तो यहां भी डिफरेंट है, ठीक है। काइंड ऑफ लोकोमोशन में भी डिफरेंस है कि जो प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला है उसकी जो मूवमेंट होती है, उसकी जो अंड्यूलेटिंग मूवमेंट होती है फ्लैजिला की, वो डिफरेंट वे में होती है। वेयर एज इन केस ऑफ यूकैरियोटिक उसकी जो मूवमेंट होगी फ्लैजिला की वो भी अलग तरह से होगा। तो काइंड ऑफ लोकोमोशन प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक आर डिफरेंट। अब देखो प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला, मैंने पहले बताया कि प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला और यूकैरियोटिक फ्लैजिला की डिफरेंस बहुत रेस्पेक्ट में है। तो एक और रेस्पेक्ट है दैट इज द स्ट्रक्चरली डिफरेंट। जो स्ट्रक्चर है प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला का, ये जो स्ट्रक्चर है, तो व्हेन यू विल सी द स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक फ्लैजिला, दीज आर एंटायरली डिफरेंट। तो ये था प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला।